الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سلسلہ تذکرہ ازواج مطہرات میں آج ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری زوجہ مکرمہ زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی اور لاڈلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا ذکر گزشتہ جمعے پہ آیا، اور آج آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ سودا بنت زمعہ بنی عامر بن لوئی قبیلے سے ہیں اور تقریباً 8ویں 9ویں پشت میں جا کر قریشی خاندان ہے۔ ان کا نسب آقا کریم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، لوئی پر جا کر ان کا نسب آپ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن عسل اور بن عامر بن لوئی، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ لوئی پر جا کر آپ علیہ السلام کے اجداد میں سے لوئی ہے، وہاں پہ ان کا نسب پھر مل جاتا ہے، قریشی ہیں۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام شموس بن قیس بنت قیس ہے۔ تو بہرکیف ان کا سلسلہ نسب آپ علیہ السلام سے اوپر جا کر مل جاتا ہے، قریشی خاتون ہے۔ اور آپ کی جو ولادت ہے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے 40 سال قبل کی ہے۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی ہم عمر ہے۔ آپ علیہ السلام کا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، تو اعلان نبوت سے 40 سال سے قبل کا مطلب تو وہی آپ کی ہم عمر ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی عمر میں، لیکن یہ آپ کی ہم عمر ہے۔ اور ان سے بھی جو آپ کا نکاح ہوا
یہ آقا کریم علیہ السلام کا دوسرا نکاح تھا اور ان کا بھی دوسرا نکاح تھا۔ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی پہلے، اور ان کے خامن جو تھے وہ سکران ابن عبداللہ، سکران ابن عمر، یہ ان کے پہلے خامن تھے، جو کہ جن کی وفات ہو گئی تھی، یہ ان کی بیوہ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ سیدہ سودا بنت زمعہ ابتداءً اسلام لانے والوں میں سے تھی، بلکہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اسلام کی ابتدائی داعیہ اور مبلغہ تھی۔ نہ صرف اسلام لائی بلکہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ بھی کی، اور جن میں ان کے اپنے شوہر بھی داخل ہیں جو بعد میں اسلام لائے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی سلیم الفطرت طبیعت اچھی رکھی تھی، تو ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا پھر ان کی ہدایت کا، وہ بھی انہی کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ان کے پہلے سکران بن عمر ان کے پہلے شوہر تھے، ان کا انتقال ہوا، پھر ان کا نکاح آقا کریم علیہ السلام سے ہوا، اور ابتداء جو تھی یہ مسلمان ہوئی، اور جب ابتداء میں مسلمانوں نے ہجرتیں کی اس میں یہ دونوں شامل تھے، میاں بیوی۔ ابتداء میں جو دو ہجرتیں ہوئی تھی، ہجرت اول ہوئی تھی اور ہجرت ثانیہ، جو دوسری ہجرت ہوئی تھی تقریباً کوئی 5 یا 6 ہجری میں، اور جس میں تقریباً 83 مرد و خواتین شامل تھے، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ پہلے ہجرت میں تقریباً 15 افراد تھے، 4 عورتیں 11 مرد، اور دوسری میں تقریباً 20 خواتین تھی اور باقی مرد تھے، تقریباً 83 افراد شامل تھے۔ ان میں سیدہ سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر سکران بن عمر، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک لاڈلی صاحبزادی سیدہ رقیہ، یہ دونوں جوڑے تھے جو اس ہجرت میں شامل تھے۔ خیر، انہوں نے دوسری ہجرت کی حبشہ کی جانب، تو یہ اس میں شامل تھی۔ اور جب یہ سیدنا سکران بن عمر اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے 2 خواب دیکھے تھے۔ سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ خواب دیکھا، اپنے خامن سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اور ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میری گردن پہ پاؤں رکھا، گردن پہ پاؤں رکھا۔ تو جب شوہر سے یہ خواب بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے میری وفات کا وقت قریب ہے، اور میری وفات کے بعد آپ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور خواب انہوں نے دیکھا، اپنے شوہر سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں تکیے پر یا ویسے میں لیٹی ہوں، گھر میں ہوں، اور آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا یا چاند جو ہے وہ آیا ہے ہمارے گھر۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کی بھی تعبیر یہی ہے کہ میرا انتقال ہوگا اور میرے بعد آپ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوگا۔ خیر، کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اللہ کی شان سیدہ سودا بنت زمعہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا، آپ علیہ السلام کے حرم میں۔ اور جب آپ نکاح میں، اس کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے وہ آپ علیہ السلام کی بڑی لاڈلی اور ایک چہیتی بیوی تھی، جو ہر لحاظ سے غم گسار بھی تھی، ہر لحاظ سے آپ کے جو وہ موافق تھی طبعاً، اور اسی طرح گھریلو گھرداری کے لحاظ سے آپ کو تسلیاں دینا، سارے معاملات دیکھنا، ہر لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاون تھی گھریلو باہر کی زندگی میں۔ ظاہر سی بات ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے باہر کے کام کاج، مصروفیات اور باقی معاملات دیکھنا، تو گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پھر ظاہر بات اپنا ایک ساری چیزیں شیئر کرتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی شیئر کرتا ہے، اور جو سلجھی ہوئی خاتون ہوتی ہیں اس کو تسلی دیتی ہیں، اس کو ہمت بڑھاتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام پر تو پوری انسانیت کی ذمہ داری تھی، تو خیر آپ بھی جو پریشان ہوتے گھر میں آ کے بیوی آپ کو تسلی دیتی، جس سے آپ کی ڈھارس بنتی تھی۔ تو خیر جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا، اور چونکہ اسی دوران جو آپ کی گھریلو غم گسار تھی وہ سیدہ خدیجہ تھی، جو باہر آپ کے غم گسار تھے وہ ابو طالب تھے، آپ کے چچا،
और उसी साल में शब अबी तालिब में आमुल हुज़न के मौका पर दोनों का इंतकाल हो गया। तो आपके लिए एक बड़ा एक सदमा था कि घरेलू सपोर्ट भी खत्म हो गई और बाहर की सपोर्ट भी अचानक से खत्म हो गई, तो आप बड़े परेशान रहते थे। तो सैयदना उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून में शामिल हैं, इब्तिदा में इस्लाम लाने वालों में। उनकी ज़ौजा सैयदा खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने आप ज़ाहिर बात है बंदा महसूस कर लेता है, चेहरा शनास होता है, और जब वैसे बंदा गमगीन हो तो वैसे पता चल जाता है कि बंदा परेशान है, बंदा क्या है, परेशान। तो उन्होंने आप सलाम को देखा तो भांप गए, पता भी था कि सैयदा खदीजा का इंतकाल हुआ है और आप सलाम को उनसे कितना लगाव था। तो उन्होंने आप सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह मैं देखता हूँ आप बड़े परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं, आपको सैयदा खदीजा की ज़ाहिर सी बात है रहलत का, जुदाई का गम तो है। फरमाया हाँ बस परेशानी है कि घर में बच्चियां हैं। अब उस वक्त सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा घर में थी, सैयदा रुकैया और ज़ैनब तो अपने ससुराल की हो चुकी थी, तो घर में बेटियां हैं, और खासकर जब घर में बेटियां हो तो माँ का होना बड़ा जरूरी है, ज़ाहिरी लिहाज से। बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन घर में बेटियां हो तो माँ का होना बहुत जरूरी है। और बेटियां जो माँ से ही मानूस होती हैं, माँ से ही हर चीज। और जाहिर सी बात है जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो बहुत सारी चीजें, बल्कि क्या सारी चीजें उनमें कॉमन ही होती हैं। औरत की चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। बाकी चीजें ऐसी होती हैं जो वालिद से तो शेयर भी नहीं हो सकती। तो जब बेटियां बड़ी हो तो माँ का सहारा जरूरी होता है। तो फरमाया मैं इसलिए परेशान हूं, घर में बेटियां हैं, और जाहिर बात है मेरा भी सहारा था, बेटियों की भी माँ थी, तो अब परेशानी है। फरमाया कि अगर इजाजत दें तो मैं आपके लिए कहीं निकाह का पैगाम भेजूं। फरमाया आप देख लें, आपने इजाजत दे दी। तो उस वक्त जो थे वो दो ऑप्शन थे, एक सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का था और एक सईदा सौदा बिनते ज़मा का। तो बहरहाल आपने जो है वो सईदा सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु तआला उनके पास तशरीफ ले गई और उन्हें सारा माजरा बता दिया। उन्होंने तो पहले से ख्वाब देखा हुआ था और ताबीर उनके शोहर बता चुके थे। तो उन्होंने तो, और जाहिर सी बात है इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होती कि कायनात का इमाम वजह कायनात, बल्कि वो किसी को अपने हरम के लिए, अपने निकाह के लिए दावत दे। तो उन्होंने तो बस सद खुशी जो है वो कबूल फरमा लिया और ये भी कह दिया वालिद से बात कर लें। और ये भी एक जो है वो कह लें कि एक तरीका है बड़ों से बात करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनके वालिद से मिली, उनसे बात की। तो उनसे जब बात हुई, उन्होंने जब सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने पैगाम निकाह भेजा तो वो उन्होंने बड़े प्यारे अल्फाज कहे कि कुफ़ुन करीम, ये तो बड़ा प्यारा बराबरी, बड़ा अच्छा एक मैच है कि आका करीम अलैहिस्सलाम, ये तो एक बड़ा आला रिश्ता है। तो उन्होंने फरमाया मेरी तरफ से तो ओके है, एक दफा सौदा से पूछ ले, उनकी भी रजामंदी हो जाए। तो ये भी एक तरीका कह लें कि हमें होना चाहिए कि बच्ची वालिदैन की इजाजत के बगैर ना चले और वालिदैन बच्ची की इजाजत के बगैर। ये एक इस्लामी तरीका कि बच्ची से भी उसकी रजा मालूम कर ली जाए, उसको बता दिया जाए इशारे पेनायों में, बल्कि आजकल तो वैसे सीधा सीधा बता दे, या अगर बच्ची बता देती है तो उसमें भी कोई मायूब नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए खुदा ना खास्ता, तो अगर बच्चा बच्ची बता दें अपनी रजामंदी और वो वाकई मुआफिक भी हो, बसा औकात बच्ची की तो होती है लेकिन वो मुआफिक नहीं होती, वालिदैन को पता होता है, लेकिन बसा औकात मुआफिक होती है, वालिदैन जानबूझकर अपनी किसी वजह से नहीं कर रहे होते, तो ये गलत है। अगर बच्चा बच्ची की रजामंदी कहीं पे है तो उनको फिर वालिदैन को थोड़ा सा जो है वो समझौता और कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो खैर उन्होंने कहा कि मैंने सौदा से बात कर ली है, वो तो राजी हैं, तैयार है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से भी ओके है, हाँ है। तो उनका फिर जो है वो उनके वालिद नहीं, सौदा बिनते ज़मा जो थे रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने फिर खुद निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम जो है वो आपका महर मुकर्रर हुआ और ये आका करीम अलैहिस्सलाम के हरम में आ गई, आपसे इनका निकाह हो गया। आप अलैहिस्सलाम के एक भाई थे उनके अब्दुल्लाह बिन ज़मा, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहीं बाहर थे। तो जब वो आए, जाहिर सी बात है जब इस्लाम नहीं लाए तो उन्हें आप अलैहिस्सलाम की कदर का भी नहीं पता कि वो क्या है। वो
जैसे कहते हैं ना कदर जर जरगर बदानत व कदर जौहर जौहरी, कि जो सोने की कीमत है सुनार को पता है, जौहर की कीमत है जो जौहरी है जो उसको ही पता होता है, उसको ही क्या होता है, पता होता है। तो खैर, तो उन्होंने जब आके देखा कि क्या बात है कि रौनक मेले हैं, जिस तरह ज़ाहिर बात है कि औरतों का मर्दों ख़वातीन का आना जाना एक चहल पहल होती है, उन्हें बताया गया कि आपकी हमशीरा का निकाह आप अलैहिस्सलाम से हो गया। तो उन्होंने एकदम ज़ाहिर बात इस्लाम कबूल नहीं किया था, खाक उठा के अपने सर पे और जिस तरह अफसोस में ना मारी कि ये क्या हो गया। उनको बड़ा एक झटका लगा, लेकिन चूंकि उस वक्त आपका निकाह हो चुका था। तो ये अब्दुल्लाह बिन जमा कहते हैं, जब इस्लाम कबूल बाद में कर लिया ना, कहते हैं उस दिन से ज्यादा मुझे कभी पछतावा नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया ऐसा। उस वक्त तो इस्लाम नहीं लाए थे, ऐसी हरकत कर दी, लेकिन बाद में फरमाया मुझे उस दिन का बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया था, उसमें ये क्या हरकत थी मेरी। तो खैर, आपका निकाह हो गया, आप नबी अलैहिस्सलाम के हरम में आ गई और आका करीम अलैहिस्सलाम की जब वो ज़ौजा मुताहरा बनी और उम्मत की माँ बन गई, उम्मत की माँ बन गई। और फिर अल्लाह ने आपको आप अलैहिस्सलाम के जरिए से फिर एक मकाम अता फरमाया। वैसे ही सलीमुल फितरत थी, इस्लाम की दाइया भी थी, मुबल्लिगा भी थी, पहले आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ला भी चुकी थी, सारी सिफात इनमें। मजीद जब आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई तो अल्लाह ने और खुबियां सिफात अता फरमा दी आपके अंदर, यानी कि सईदा खदीजा की कमी फिर जो है वो उन्होंने पूरी की और जो हो सकता था वो आपके साथ जो है वो निभा किया। तो खैर, उसके बाद फिर सईदा सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी फिर कह लें कि एक मिजाज के अंदर जो था ना, सख्ती भी थी मिजाज में, यानी कि थोड़ी सी जिसे कह लें कि जल्दी जज्बाती हो जाना है, गुस्से में आ जाए और जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाए। और मिजाज में ज़राफत भी थी, हंसी मिजाज भी था। अल्लाह ने दोनों सिफात रखी और अल्लाह ने आपको कद काट भी दिया था, सेहत अच्छी थी, कद काट अच्छा था। ये सारी सिफात अल्लाह ने आपको अता। सखावत भी बड़ी कमाल की थी, ईसार भी बड़ा कमाल का था। और ये चंद एक वाक़यात आप हजरात के सामने रखने कि आपके अंदर जो है वो ज़राफत, एक मियां बीवी का ताल्लुक, जाहिर बात है अब इसी से घरदारी का भी पता चलता है कि घर में इंसान का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। इंसान मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रोल्स में होता है, या मुख्तलिफ कह लें कि एक कैटेगरी में होता है, मुख्तलिफ वो रूल अदा कर रहा होता है। घर में और रोल है उसका, बाहर और रोल है, ऑफिस में और रोल है, दोस्तों के साथ और रोल है, मिजाज में मुख्तलिफ होते हैं। हर जगह बंदा एक मिजाज के साथ नहीं रह सकता। आप दोस्तों में बैठे हैं तो बड़े सीरियस बन के बैठे रहें तो आपके पास कौन बैठेगा। अगर दोस्तों में हंसी मजाक गपशप आप नहीं करेंगे तो आपका दोस्त कौन साथ बैठे। घर में आप मुंह फुला के बैठे रहेंगे तो कौन, कोई। तो हर जगह, तो इसी तरह घर में जो आपका मिजाज है उससे ये भी पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम घर में अपनी बीवियों के साथ आपका कैसा जो है वो अच्छा एक कह लें कि रवैया था। और अज़वाज मुताहरा जो थी वो भी खुल के आप अलैहिस्सलाम से कैसे बातें करती। तो एक दफा खुशतबी कर रही थी, कह रही थी कि मैंने एक दफा आपके साथ, आपके पीछे आप क़यामुल लैल कर रहे थे, रात की नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने भी नियत बांध ली आपके साथ। आपने इतना लंबा रुकू किया, इतना लंबा रुकू किया, मैं तो डर गई कहीं मेरी नक्सीर ना फूट जाए, मेरी नक्सीर। और मैंने फिर नाक पे हाथ रख लिया। तो आप अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। एक खुशतबी थी, आप अलैहिस्सलाम का रुकू हम क्या मुकाबला कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम के क़याम का, रुकू का, जब क़याम का हादीस में तज़किरा आता है, इतना क़याम फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते थे, तो हम क्या मुकाबला करें। क्या हमारे तो कदमों को पसीना भी नहीं आता क़याम से, सूझना तो दूर की बात है। तो हमारा तो मुकाबला, तो फरमाया आपने इतना लंबा रुकू किया, मुझे तो डर था मेरी नक्सीर ना फूट जाए, मैंने नाक पकड़ ली मिजाहन आपसे। तो ये ऐसा ज़राफत भी थी, यानी कि ये मिजाज भी था। और फिर आपस में बीवियों के अंदर भी ज़राफत थी, बीवी के अंदर भी। और आप अलैहिस्सलाम इसको भी जिसे कह लें ना, खुश होते थे, मुस्कुराते थे, एंजॉय करते थे बीवियों का आपस में। एक दफा ऐसा हुआ, आप जो वो सईदा सौदा के घर में है, सईदा आयशा चूंकि आप जो है बाद में जब निकाह हो गया आपकी, वो भी लाडली थी, तो घर से, अपने घर से ना एक स्वीट डिश थी, हरीरा उसे कहते थे, हलवा कह लें, हरीरा कह लें, वो बनाकर ले आई सईदा सौदा के घर में। अब उन्हें जैसे होता है ना, तभी तौर पर अच्छा नहीं लगा कि घर मेरा है, मैं खिलाऊं पिलाऊं इकराम करूं, मेरा बनता है। तो सईदा आयशा ले, तो उनको अच्छा नहीं लगा। सईदा आयशा ने उनको भी कहा कि आप भी खाएं। उन्होंने कहा मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती। अब उनको
वो भी हैं, तो भी वैसे तो छोटी थी, उम्र में छोटी थी, लेकिन स्टेटस तो दोनों का एक ही था ना, वो भी बीवी है, वो भी बीवी है, उम्र में तो ज्यादा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो खैर उन्होंने कहा आप खाएं वगैरह मैं आपके मुंह पे मल दूंगी, ये हरीरा, ये हलवा, ये जो भी स्वीट डिश है, अगर नहीं खाएंगी तो आपके मुंह पे मल दूंगी मैं। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी मैं। अब वो समझ रही थी, शायद उनके जहन में भी ना हो कि ऐसे कैसे कर सकती हैं, लेकिन वो चूंकि एक जाहिर बात है वो भी बीवी हैं, वो भी बीवी हैं, और आप अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, और एक खुश तबी के उसमें उन्होंने जब इनकार किया, उन्होंने पकड़ा हलवा, पकड़ा हलवा शरीफ और उनके मुंह पे मल दिया। अब आप अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपने कोई नहीं डांटा, उन्हें पता आपस में बीवियां शौकले आपस में। उन्हें आप अलैहिस्सलाम ने कहा अब आप ऐसा करो, आप भी बदला ले सकती हो, आपको इख्तियार है, आप भी ले लो। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने उनके मुंह पे मल दिया। तो ये भी चलता था कि घर में ये भी मामलात होते हैं, ये नहीं कि बंदा घर में बड़ा कोई चौधरी बन के और बैठा रहे, नहीं, घर में ये चीजें चलती घर में। तो ये आपकी ज़राफ़त भी थी, आपकी ज़राफ़त भी थी। और एक वाक़या ये भी लिखा है, सैयदना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो उसको कहा कि ये बेअसल है, ज़ईफ़ है, लेकिन एक वाक़या ये भी लिखा है कि सईदा हफ्सा और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दफा जा रही थी, तो सईदा सौदा बिन्त ज़मा को दज्जाल से बड़ा खौफ आता था। दज्जाल सुना, ज़ाहिर बात है हमें भी डर लगता है, तो तभी तौर पर वैसे भी तो उन्हें खौफ आता था। तो वो जा रही थी, तो उन्हें एकदम कहा दज्जाल आ गया, दज्जाल। वो दौड़ के किसी घर में घुस गई, छुप गई। तो आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि ने ऐसा किया, उसके साथ फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको बाहर निकाला कि वैसे करें, कोई नहीं, आगे बाहर आ। बाहर आए तो उनके जो वो कपड़ों पे वो जाले शाले लगा, ऐसे ही कहीं घुस गई तो जाले शाले लगे हुए थे। तो ये जिंदगी भी उनकी थी आपस में, ये प्यार मोहब्बत उल्फत इस तरह। और फिर इसार भी था। सईदा सौदा बिन्त ज़मा चूंकि बड़ी उम्र की थी, तो आखिर उम्र में आपने कि मैं जाहिर सी बात है उनसे आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी कोई नहीं, तकरीबन बाकी किसी भी उससे औलाद नहीं है सिवाय मारिया किब्तिया और सईदा खदीजा से। तो उन्होंने कहा आखिरी उम्र है मेरी। अब आप अलैहिस्सलाम चूंकि इंसाफ के साथ चलते थे, हर बीवी के लिए दिन मुकर्रर है। उन्होंने कहा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, सईदा आयशा और बाकी अज़वाज यहाँ भी मुझसे छोटी हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी बारी जो है वो आयशा से कहा कि आप ले, मैं अपनी बारी आपको देती हूँ कि मेरे दिन भी आप अलैहिस्सलाम आपके पास रहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे इसी वजह से सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बड़ी खुश हुआ करती थी और फरमाया करती थी कि ये सौदा बिन्त ज़मा ऐसी औरत है, किसी औरत को यानी कि किसी औरत के लिए इनके अलावा मुझे ये ख्याल नहीं आया कि उनके बारे में सोचती थी कि काश इनके कालिब में मेरी रूह होती, इनके कालिब में मेरी रूह यानी कि मैं इन जैसी होती। कह रहे इसके अलावा किसी औरत के बारे में मुझे ख्याल नहीं आया। इतनी उनकी तारीफ फरमाती थी और इतनी उनसे खुश हुआ करती थी। तो बार कहती है उनके जो है वो एक ज़राफ़त कह लें, और उनकी और फिर इबादत उनकी और उनकी सखावत का अंदाजा इसे लगा ले कि एक दफा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक थैली में भर के दिरहम आपके पास भेजे। थैली भर के दराहिम जब आए तो उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा दराहिम है। उन्होंने कहा अच्छा, अब दराहिम थैलियों में यानी कि थैलियों भर भर के आने लगे। पहले तो थैलियों में खजूरें आती थी, अब यानी कि इतने यानी कि वाफिर हो गए हैं कि दराहिम आने लगे। उन्हें पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा जाओ इसको वैसे ही अल्लाह के रास्ते में लोगों को, फुकरा को तकसीम कर। और वो सारे के सारे आपने तकसीम कर, सारे के सारे आपने तकसीम कर दिए। तो ये अज़वाज मुतहरात में सईदा सौदा बिन्त ज़मा। फिर जो हिजाब की आयतें नाजिल हुई हैं वो इन्हीं का वाक़या है कि ये एक दफा पहले जमाने में, जैसे ये तो हमने भी बचपन में देखा है कि जब औरतें मर्द सारे बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, तो ये बाहर कहीं जा रही थी, चूंकि कद अच्छा खासा था, ठीक था, पहचानी जाती थी, तो उस वक्त तक पर्दे के अहकामात भी नाजिल नहीं हुए थे। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा कि तुम बाहर ना आया करो। बाहर है यानी कि आपको तभी तौर पर पसंद नहीं था कि अज़वाज मुताहरात बाहर आए, क्योंकि मुनाफिकीन जो थे, मुनाफिकीन वो उनकी वजह से कहते थे कि मुझे पसंद नहीं, आप बाहर आए तो पर्दे में आए, वैसे ना आए, वैसे बाहर ना आए। तो सईदा सौदा को बड़ा इसको अजीब लगा कि ये क्या इन्होंने किया, क्या कहा मुझे। आप अलैहिस्सलाम से शिकायत की, आप अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह की शान इसी असना में अल्लाह ने पर्दे की आयत उतारी, पर्दे की कि ए नबी की बीवियों, नबी की बेटियों, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन,
कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिब। ए नबी, आप अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से और इसी तरह उम्मत की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर बड़ी चादर ओढ़नी ओढ़ कर निकला करें, अपनी बड़ी चादर ओढ़नी है, ताकि वो मुनाफिकीन को आपकी पहचान ना हो सके। तो इनके लिए अल्लाह ने फिर आयत हिजाब भी नाजिल फरमा दी। तो ये इन्हीं का हिस्सा हुआ कि अल्लाह ने इनकी बदौलत है आयत हिजाब को नाजिल फरमाया। तो ये सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, उम्मत की माँ, आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा, फिर हज्जतुल वदा के मौका पर आप अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो हज्जतुल वदा में आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से कहा कि आइंदा तुम जो है वो बाहर ना निकलना। आइंदा, अब मकसद ये था कि बिला हाजत, बिला जरूरत बाहर ना निकलना, घर में ही रहना, घर में अपने आप को रखना, बिला हाजत के बाहर ना निकलना। लेकिन सैयदा सौदा ऐसी आप अलैहिस्सलाम के साथ जो है उस बात को ऐसा माना कि आप अलैहिस्सलाम के जो कह लें कि उस हुक्म के बाद फिर जिंदगी भर आप कभी घर से बाहर नहीं निकले। इवन के ना हज ना उम्रा, कि मैंने उम्रा और हज आप अलैहिस्सलाम के साथ कर लिया है, बस काफी है, आइंदा में कभी भी आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की वजह से कभी घर से बाहर नहीं निकले। तो ये हस्तियां हैं जिनकी जिंदगी हमें अपनानी चाहिए, जिनकी जिंदगी हमें लेनी चाहिए, और यही काबिल कदर, काबिल जो है वो लायक तकलीद हस्तियां हैं, और इन्हीं की मुबारक जिंदगियों में हमारी इज्जतें हैं। इन्हीं की जिंदगी को अपनाने से हमारी इज्जत है, हमारा वक़ार है। और मोमिनों की जो औरतें हैं, मोमिनीन की जो खवातीन हैं, उनको इनके नमूने, इनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, इनके मुताबिक अपनी, ये हमारी आइडियल है कि इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, इन्होंने सादा और ऐसी तकवे वाली पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर कायनात में अपने आप को मनवाया, कायनात की इज्जतें समेटी हैं। तो इसलिए नबी की और नबी की मुबारक घर वालियों की जिंदगियों को अपनाकर अल्लाह इज्जतों से नवाजते हैं, अल्लाह रहमतों से नवाजते हैं। तो इसलिए ये जिंदगियां हैं हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बीवियों के लिए, कि इस जिंदगी को अपनाएं। इसी में खैर है, इसी में खैर है, इसी में इज्जत की हिफाजत है, इसी में इस्मत की हिफाजत है, इसी में अपनी जो है वो चादर चार दीवारी की हिफाजत है। तो इसलिए इनकी जिंदगियों को अपनाना, इनकी जिंदगियां बयान करने का मकसद भी यही है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की औरतें, अगर उन्हें पर्दे की जरूरत है, जो कायनात की माएँ हैं और सबसे पाकीज़ा हस्तियां हैं, और जिस माहौल में हैं वो भी सबसे पाकीज़ा माहौल है, और वो माहौल और वो जमाना है जिसका आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन जमाना वो मेरा जमाना है, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना। इन तीन जमानों की आप अलैहिस्सलाम ने खैरियत की, बेहतरीन होने की जो है वो बशारत भी दी है। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें पर्दे का हुक्म है, तो आज 1445 साल के बाद और बहुत ज्यादा जमाने में चेंजेस के बाद और बहुत ज्यादा बेहयाई और यानी तुग़यानी, फहाशी और बदतमीजी और वाहियाती अगर इतना आम हो जाए, तो आज के दौर में तो उससे हजारों गुना दर्जे ज्यादा जरूरी है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां पर्दे के अंदर हैं। उस माशरे की पाकीज़गी और आज की माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नापाकी। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी माएँ बहनें वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटियों को, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुबारक अज़वाज को कॉपी करें, उनकी जिंदगियों को अपनाएं, पढ़ें, उनकी जिंदगियों को अपनाएं। इसी में खैर है, इसी में अल्लाह ने खैर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।